Hi guys, good evening. Welcome to Mrs. Diva and welcome to this very important live session on how to plan your business growth in the year 2021. My name is Astha Jain and I'm a business coach for women entrepreneurs. Okay, so let me just quickly start this live session on my laptop as well so that I'm able to read your comments side by side. So, how are you all doing, guys? So, keep dropping in your highs and hellos as usual, as you used to do earlier. I know you guys are seeing me after a very long time on screen. Probably the biggest break that I had ever taken from social media, from my live sessions. This is my favorite work. Hi, Survi, how are you doing? Hi, Nilshri. Survi, happy winters to you too. Hi Papa, thank you for joining in. Hi Priyanka, thank you guys. Hi Sangeeta, thank you for joining in. Thank you so much Survi. Yes, I was also very excited for this session. Hi Niva, thank you for joining in. Siri, thank you so much. I'm good, I'm much better. Thank you so much. I know that this. Thank you so much. So this is really it is actually a very important session also, guys. As much as hi Pooja, thank you for joining in. As much as I was waiting for this session, I was excited for this session. This is a very important session for all of us because we are going to did I just move the camera in the wrong direction? I'm so sorry guys if I just did that. Thank you so much Sangeeta. So I'm reading your comments also side by side. Hi Megha, thank you for joining in. Hi Mama, thank you. Okay, so yes, so I'm not sure if we have new people today in the live session or not, but I really thank you so much for joining in, Dr. Gayatri. How are you doing? Okay, so let me just start with my introduction. My name is Astha Jain and I'm a business coach for women entrepreneurs. I help them in growing their business, make it more profitable, scalable, and more sustainable. And during this time of pandemic, the sustainability issue is the biggest issue probably that a lot of us are facing right now. Hi Archana, thank you for joining in. Okay, and why I'm talking about this is because you guys know that last few weeks have not been very kind on me, and especially my health. And this was the time when my health is the biggest thing that biggest thing for any of us. And it was a very difficult time for me. Thank you so much for keeping a check on me, guys. All of you, Priyanka, Sakshi, Vinisha, Neva, you guys, thank you so much. Isha को तो कुछ बताने की जरूरत पड़ती भी नहीं है. She always knows what's happening with you. She'll message you and she will tell you that this is happening with you. You should do this or you should do that. So I'm talking about this today it's because as difficult pandemic time has been for all of us, we all of us have our own struggles also that are going beyond, that are going apart from the pandemic time. So we have to at times stay ready for all the situations. Hi Pooja, thank you for joining in. How are you doing? Hi Garima, thank you for joining in. So I wanted you guys to be ready a little bit for the year to come. I know all of us have taken a big hit in terms of business. Hi Meena, thank you for joining in. We have taken a big hit in terms of business in this year, in 2020. And how about we prepare a little bit in advance for the year to come? And how about hi Anjuji, thank you so much for joining in. How have you been? I was thinking to message to you day before yesterday, but I thought you probably would be busy, and that's why I did not disturb you. But thank you so much for joining in. Okay, so I was talking about how to be a bit ready with the business in the next year, and let's just discuss a few points. Okay, thank you so much Purva, thank you so much. Okay, so today we'll be
discussing a few important points for the business growth in the next year, and let me make this request to all of you before I'm starting with these points, that please just share this in just one place. Please just share this live session in any one group that you like, one or two groups, so that it reaches all the women entrepreneurs, it reaches all the business people, and not just women entrepreneurs, any startup entrepreneur who is out there and who's looking for some kind of support. They should see this live session and they should know that we are here to help out each other, and we are here to help. Okay, so Surbi saying she had a lovely session yesterday with Vinisha. Oh, wonderful Surbi. So Vinisha is like that only. Anyone who speaks to her once becomes a fan of her for the rest of their lives. So we are totally blessed to have Vinisha in our lives, guys. So okay, so I was saying that, guys, please just share it anywhere you like. Like I always say that at Mrs. Diva, we do not always do things because of freebies or anything. We do things because we want to help each other. So if you think that this session might be helpful to other people, helpful to other women entrepreneurs, please just share it. Okay. So I was saying that we will be, these are the stencil points that you guys need to keep in mind for the next year, for the year to come, and we need to work around these points in terms of our businesses. These points are applicable for. Hi Shalini, how are you doing? Yes, Nilshi. Thank you so much, Shikha. Thank you so much. Hi Sarika, thank you for joining in. Okay, so these are the stencil points that you guys need to keep in. Hi Isha, thank you for joining in. Hi Snigdha, thank you, good to see you too. So these points you have to keep in mind for the year to come, and try to work around these points. So before I talk about these points, let me talk about one very important point, which is goal setting. So goal setting is what types of goals you need to set, and how do you set these goals? Because most of the women entrepreneurs who I speak to, the biggest challenge that I face with them is that they are clueless about how to set your own business goals. Business goals kaise set kare? Acha, guys, let me tell you one thing, that I am doing this session for after a very long time. That's why जो मेरे usual points हैं मैं वो सारे repeat कर रही हूँ. मैं English और हिंदी language दोनों ही बहुत अच्छे से जानती हूँ. अगर आपको किसी भी point में कोई भी दिक्कत हो, English में ना समझ आए या हिंदी में ना समझ आए, तो मुझसे जरूर पूछिएगा, comment में लिख दीजिए. मैं comments आपके साथ साथ पढ़ रही हूँ. मैं हिंदी में भी बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ और इंग्लिश में भी बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ. मैं दोनों ही लैंग्वेजेस में मिक्स करके समझाने की कोशिश करती हूँ. तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आप मुझे वो बताइएगा, मैं उसी में आपको समझाने की कोशिश करूंगी. थैंक यू सो मच. ओके, सो नाउ दैट वी हैव गॉट दिस थिंग क्लियर एंड ऑफ टेबल. सो द बिगेस्ट चैलेंज, जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं कई बार फेस करती हूँ अपने एक्सपर्ट्स के साथ, या अपने जो भी मेरे साथ मेरे मेंटीज हैं उनके साथ, वो होती है गोल सेटिंग की. अ लॉट ऑफ टाइम्स दे डोंट अंडरस्टैंड कि गोल कैसे सेट करते हैं, बिजनेस में गोल कैसे सेट किए जाते हैं. बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. सेटिंग अ गोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन ईच एंड एवरी बिजनेस. सो गोल सेटिंग से ही स्टार्ट कर लेते हैं. लेट्स स्टार्ट विद गोल सेटिंग. सो 3 मेजर टाइप के गोल सेटिंग्स होते हैं, यू गाइज शुड बी कंसर्न अबाउट. तो आप लोग जो है 3 टाइप्स के ही मेजर गोल सेटिंग्स के बारे में ध्यान रखिए. बाकी जो है वो रेलेवेंट आप लोगों के लिए नहीं है. स्मॉल बिजनेसेस, विमेन एंटरप्रेन्योर्स, सोलोप्रेन्योर्स, हम लोग 3 मेजर टाइप्स के गोल सेटिंग्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग ध्यान रखते हैं. सबसे पहला होता है बिजनेस प्रोसेस गोल्स. So guys, I'm going to read your messages after some time. मैं बिल्कुल पढ़ूंगी. निधि पंजाबी, पंजाबी से याद आया, हैप्पी गुरपूरब गाइस, हैप्पी गुरपूरब टू ऑल ऑफ यू. गुरपूरब दिया लख बधाइयां तुहानू सब नू. ठीक है निधि, मैंने ये बोल दिया. पंजाबी ना मैं गाने बहुत अच्छे से गा लेती हूँ क्योंकि वो लिरिक्स मुझे याद हो जाते हैं. बात करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, मुझे समझ बहुत अच्छे से लेती हूँ. ओके, तो 3 मेजर जो गोल सेटिंग्स आपको, या जो टाइप्स ऑफ गोल्स आप लोगों को दैट शुड बी इम्पोर्टेंट टू यू, आप लोगों को जिनसे जो you guys should be concerned about should be our
एक तो प्रोसेस गोल्स, बिजनेस प्रोसेस गोल्स, बिजनेस परफॉर्मेंस गोल्स, थर्ड इज बिजनेस आउटकम गोल्स. अब ये क्या होते हैं? So business process goals is process goals. Try to understand from the name itself. Any kind of process that you guys want to set up, कोई भी process आप set up करना चाहते हो, any goal that you want, any course that you want to develop, कोई service आप release करना चाहते हो, उससे related होता है. Second is performance. Performance basically achievement. It's in the name. Name से ही समझने की कोशिश करिएगा. बहुत simple है, but important है. So achievement. So for example, I want that I should get 10 new registrations every month for next 5 months. So this is my performance goal. ये मेरा performance goal हुआ. या फिर I want to generate 5 references from 10 clients in next 5 months. सो क्वांटिफाइबल गोल्स के बारे में हम लोग जहां बात करते हैं, और गोल्स को ना क्वांटिफाइबल ही रखना चाहिए, क्वांटिटी जहां पे हम नंबर्स में हमें बात करनी चाहिए. अदरवाइज जो गोल्स होते हैं वो थोड़े मीनिंगलेस से हो जाते हैं. अगर मैं ये कहूं दैट आई वांट टू जनरेट रेफरल्स फ्रॉम माय क्लाइंट्स इन नेक्स्ट 6 months, बहुत ही वेग सा गोल हो गया ना. आपको समझ आएगा ना, मुझे समझ आएगा, याद भी नहीं रहेगा हमें. सो क्वांटिटी में, नंबर्स में हमेशा बात करिए जहां हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं. सो डू दिस थिंग कि ये अपने जो ये गोल्स हैं हमें ये सेटअप करने चाहिए. अचीवमेंट गोल्स इनको हम कहते हैं, परफॉर्मेंस गोल्स इनको कहते हैं. इनके बारे में याद रखिए. लास्ट टाइप ऑफ जो गोल होता है वो होता है आउटकम गोल. आउटकम गोल जो होता है लॉन्ग टर्म आउटकम क्या चाहते हैं हम, शॉर्ट टर्म आउटकम क्या चाहते हैं. सो 2021 से हो सकता है मेरा लॉन्ग टर्म जो गोल है, आउटकम गोल है, वो ये है कि I want to earn 1.5 lakh rupees in next 6 months. ये मेरा हुआ लॉन्ग टर्म गोल फॉर द ईयर 2021. अब इसका शॉर्ट टर्म गोल क्या हुआ, इस गोल तक मैं कैसे पहुंचूंगी? एक ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मंथ ऑफ जून सीधा मुझे 1.5 लाख रुपीस मिल जाएंगे एक क्लाइंट से. पॉसिबल नहीं है. बहुत कम केसेस में पॉसिबल होता है. इतना लकी तो बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो इतने लकी होते हैं. तो इसमें क्या करते हैं हम इसको शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड कर देते हैं. शॉर्ट टर्म गोल्स में कैसे कि हर महीने आई विल जनरेट अ रेवेन्यू ऑफ 25,000 रुपीज. दिस इज माई शॉर्ट टर्म बिजनेस आउटकम गोल. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ डू वी सेट अप दिस गोल. अब बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ईयर की जो हम प्लानिंग करते हैं. अब जो व्हेन वी टॉक अबाउट बिगर कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके पास दे हैव एक्सपर्ट्स एंड दे लाइक दे बॉइल डाउन एवरीथिंग टू द टी, और बहुत बड़ी प्लानिंग होती है उनकी. बट फॉर जो हम स्मॉल बिजनेसेस हैं या हम विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ हेल्प. हमारे पास बहुत एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं. वी आर वन विमेन आर्मी. सो व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि हमें वी शुड स्टार्ट विद अ प्लान. अपना एक बेसिक प्लान आप बना के चलिए. उसके बाद अगर आपको जो चेंजेस करने हैं आप वो उसमें करते रहिए. बट एक बेसिक आपके पास प्लानिंग, एक बेसिक गोल सेटिंग डेफिनेटली हमारे पास जरूर होनी चाहिए. अब वो कैसे होगी? इट्स वेरी सिंपल. हाय मालती, हाउ आर यू डूइंग? इट्स वेरी सिंपल. Guys, if you don't understand anything, मेरे को questions में लिखते रहिएगा. I'm going to answer every question. मैं जरूर सारे questions जो है आंसर करूंगी आपके लिए. So how do we do that? Take a step back. Take a step back. Analyze your current business standpoint. अभी का situation क्या है उसको analyze करो. Do a thorough audit, financial audit करो. कहाँ कितना पैसा जा रहा है business में, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, expenses कहाँ बढ़ाए हुए हैं हमने, कहाँ से हम reduce कर सकते हैं expenses. ये सारी चीजें note करनी, it's very very important for us. So जब आप ये एक एनालिसिस कर लोगे, और ये एनालिसिस आई थिंक आई वाज टॉकिंग टू नेहा, हम लोग शायद बात कर रहे थे. इफ यू आर वाचिंग लाइव यू रिमेंबर फ्रॉम आवर सेशन कि ये प्रोडक्ट बेस पे, जब प्रोडक्ट बेस्ड जो बिजनेस होते हैं उनको ये एक इन्वेंट्री ऑडिट, ये एक फाइनेंशियल ऑडिट. हाय प्रियंका, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. हाय विभा. उनको ये ऑडिट्स तो बहुत जरूरी होते हैं. आफ्टर एवरी 2 months 3 months ये ऑडिट जरूर किया करो. हाय प्रीति, नो वरीज. So this audit is very very important. और अब आप year end कर रहे हो, this audit is 110% extremely important for all of you. तो सभी take a step back and see what is your current business situation. अभी आपका क्या current business situation क्या चल रहा है.
एक्सपेंसेस कहाँ है, इन्वेंट्री है तो कितनी है हमारे पास, कितने ऑर्डर्स हैं, डेड इन्वेंट्री कितनी है, डेड स्टॉक कितना है। डेड स्टॉक से मेरा मतलब वो स्टॉक जिसका आपको लग रहा है कि अभी ऑर्डर आएगा ही नहीं आएगा, मेरे पास अभी करंट स्टेट में इसका ऑर्डर नहीं है। सो ये सारी जो चीजें हैं ये आपके पास आपको नोटेड होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। टेक सम टाइम ऑफ, और ये काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करो। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग यू हैव टू डिसाइड कि नेक्स्ट ईयर के मुझे कैसे कैसे गोल्स बनाने हैं, मुझे क्या करना है, बिकॉज अब जो लॉस हुआ इस साल में वो कवर अप तो करना है। सो ऐसा नहीं है कि व्यूज गोल्स जो है बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरली हाई सेटअप कर देना कि इस साल में तो हमारी इनकम हुई, छोटा सा एग्जांपल लेके बता रही हूँ, 1 लाख इनकम हुई, 2021 में हम अपना गोल सेटअप कर ले 10 लाख इनकम। कोई मतलब देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द टू फिगर्स कि हम कैसे 1 लाख से 10 लाख पे आए, राइट। सो एक हमारे पास एक बेसिस होना चाहिए कि 1 लाख से लेके 10 लाख तक अगर हम पहुंचे तो कैसे पहुंचेंगे, नंबर ऑफ क्लाइंट्स कहाँ से इतने हमारे पास आएंगे, सेल हमारे पास कहाँ से इतनी आएगी, लीड्स कहाँ से हम लोग जनरेट कर रहे हैं। तो एक आउट ऑफ द ब्लू नंबर नहीं हमें लेना है, एक सिर्फ एक रेफरेंस के लिए हम लोग ये जो एक नंबर है वो जनरेट करते हैं, और हमको उसके अकॉर्डिंग जो पिछले ईयर में हमारा इनकम हुआ है उसको एक बेस रेफरेंस लेके ही हम ये गोल सेटिंग जो है वो करते हैं। अब हमारे पास एक आ जाता है फाइनल गोल ईयर का। तो ये जो ईयर का गोल है इसको हम लेके चलते हैं नॉर्थ स्टार की तरफ। जितने हम छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने छोटा सा एक गोल बनाया दैट आई वॉन्ट 1000 फॉलोअर्स ऑन माई पेज इन नेक्स्ट 6 months। सो जो ये नॉर्थ स्टार वाला मेरा गोल है, ऑल दीज गोल्स शुड बी इन द परस्यूट ऑफ दिस नॉर्थ स्टार वाला गोल। So try to understand these things, that these goals that we set up, these short-term goals, and this is very important guys, especially for a small businesses। हम लोगों के लिए ये बहुत important है, ये जो goal setting है हमारी, ये बहुत important है हमारे लिए, because ये जो goals है ये हमें these goals push us to move forward। हमारे लिए जो success है वो इन्हीं short-term goals की वजह से आती है, and then they help us in growing। एंड ट्राई टू कीप दीज गोल्स अटेनेबल। ये गोल्स जो है ना उनको थोड़ा सा अटेनेबल रखने की कोशिश किया करिए, एंड अलाइन देम विद द टाइम यू आर एबल टू स्पेयर आउट फॉर योर वर्क। एट टाइम्स क्या है, एक्सपेक्टेशन सेटिंग हमारी जो है ना वो खराब हो जाती है, गलत हो जाती है, आउट ऑफ सिंक हो जाती है। काम हम दिन में कर रहे हैं 2 घंटा एंड देन वी एक्सपेक्ट कि रिजल्ट मिल जाए 5 hours वाला, वो नहीं होगा। अब हम लोग सोचते हैं कि यार काम हमने किया 2 घंटे बट रिजल्ट नहीं आया, और कई बार हम वो 2 घंटे भी स्पेयर नहीं कर पाते। सो प्लीज ये जो एंटाइटलमेंट वाला फीलिंग है ये मन में बिल्कुल मत लाने देना, ये बहुत बहुत डेंजरस हो जाता है। एंड एट टाइम्स आई रिसीव मैसेजेस दैट आस्था आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स, मैंने तो काम किया था, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कितना एफर्ट डाल रहे हैं। जितना गुड़ डालोगे ना मीठा उतना ही मिलता है, जो चाहे कुछ भी कर लो, चीनी जितनी पड़ेगी ना उतना ही मीठा आएगा, वो उससे ज्यादा डबल मीठा नहीं देता है वो, कुछ भी हो जाए। तो please try to keep this thing in mind। I'm trying to I use these words to make you guys understand। So because I know गुड़ का बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं होता, but then at times समझाने के लिए मुझे ये चीजें, ये एग्जाम्पल्स यूज करने पड़ते हैं आपको। Okay, now let's quickly start with the points that we have to keep in mind। अब ये है हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है नेक्स्ट ईयर का, वो ये है। We have to keep these stencil points in our mind। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, हमें इससे रिलेटेड ही गोल्स बनाने हैं। बिजनेस जो है इन्हीं पॉइंट्स पे हमें बेस करना है। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके, लेट्स टेक दैट एज सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से। सो स्टार्ट विद अ प्लान गाइस, स्टार्ट विद अ प्लान। बेसिक एक बिजनेस प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए, बेसिक एक मार्केटिंग प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए। अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आर क्लूलेस। प्रोडक्ट है हमारे पास, सप्लाई दे सकते हैं, बट किसको सेल करें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आ जाता है। वी कैन सप्लाई, आई कैन सप्लाई, पेन में सप्लाई कर सकती हूँ बट बेचूं किसको, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मार्केटिंग कैसे करूं, किसको बेचूं और कैसे बेचूं, वेरी बिग पॉइंट। सो प्लीज ट्राई टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट वी शुड नो, वी शुड हैव अ बेसिक प्लान। एक आगे चलने का एक रास्ता तो चाहिए ना, एक सड़क तो चाहिए जिसपे आगे बढ़े, कदम बढ़ाए, तो वो चीज जरूर ध्यान में रखिएगा। हाय सुगना, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू विशाली, थैंक यू गाइस।
सो ये चीज जो है, please try to keep this thing in mind that it is very very important for us to start with at least one plan. कुछ माइंड में लेके चलो, नहीं समझ में आ रहा मुझसे बात करो, टॉक टू मी, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे. कितना ही डिफिकल्ट आपको लगता हो, आपका प्रोडक्ट है, कोई नहीं ले रहा, कोई बात नहीं, कोई रास्ता निकलेगा. लेट्स टॉक. बात करने से ही, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से ही आइडियाज आते हैं. बट देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस गाइस, बहुत जरूरी है दैट वी शुड एटलीस्ट हैव अ बेसिक प्लान इन प्लेस. एक मार्केटिंग प्लान और एक बिजनेस प्लान, आगे बढ़ने का एक रास्ता बहुत जरूरी है. देन लेट्स कम टू सोशल मीडिया मार्केटिंग. ये मेरा फेवरेट वाला, सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक यही होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग. नाउ ऑल ऑफ यू नो इट्स इंपॉर्टेंस एंड पावर बाय नाउ. अभी तक हम सबको पता है. जिसको नहीं पता है वो मेरे यूट्यूब के वीडियोस देख लेना जाके. फेसबुक के पेज पे भी आपको मिल जाएंगे वीडियोस. यू नो, आई वाज वाचिंग वन ऑफ द एक सोशल मीडिया गुरु का मैं वीडियो देख रही थी, एंड शी सेड दैट शी विल बी कंडक्टिंग अ वेब. इट वाज अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बाय द वे. तो वो स्पॉन्सर्ड टारगेट होके मेरे पास आया था, एंड इट सेड दैट यू प्रोबेबली डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ सोशल मीडिया, सो आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ वेबिनार and I'm going to tell you how important social media is. And I got scared कि अगर ये targeting ऐसे हुई भी है और ये मेरे पास आ रहा है, मेरे जैसे लोगों के पास आ रहा है, तो I was really concerned कि ये कैसे targeting हुई भी है, कि मेरे जैसे I mean हम लोग रियली, आई फील पर्सनली अभी तक हम लोगों को सबको पावर ऑफ सोशल मीडिया समझ आ गई है. तो आप लोगों में से कोई ये मत बोलना क्या सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट नहीं है. सोशल मीडिया से ही रोजी रोटी चल रही है, फेसबुक से ही खाना खा रहे हैं बहुत से लोग. तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना. हाँ, सो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आस्था जैन से कोचिंग ले रहे हैं और फेसबुक का इंपॉर्टेंस नहीं पता, सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंस नहीं पता, यूट्यूब का इंपॉर्टेंस नहीं पता. नाक मत कटाना प्लीज मेरी, अभी भी बात कर लेना मेरे से, ड्रॉप मी अ मैसेज, ठीक है. ओके, सो it is, you know guys, decide the channel. social media marketing decide करो, चैनल डिसाइड करो कौन सा इंपॉर्टेंट है. फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, ट्विटर है, लिंक्डइन है. प्राइमरी चैनल डिसाइड करो, सेकेंडरी चैनल डिसाइड करो, टर्शरी चैनल डिसाइड करो कि कौन सा किस पे रहना है. फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम पे रहना है, फेसबुक प्लस लिंक्डइन पे रहना है, फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम, सेकेंडरी चैनल लिंक्डइन रखना है. मेक अ डिसीजन, इट्स ओके, वी कैन डिस्कस एंड मेक अ डिसीजन, ठीक है. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ दैट सोशल मीडिया इज अ ग्लोबल फिनोमिना गाइस. हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ये. एंड यू नो सो पूजा, यस पूजा, मैं पूजा के ही एग्जाम्पल से ही आप लोगों को ये चीज समझाना चाह रही थी दैट इवन फॉर लोकल बिजनेसेस हाउ इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया इज. वॉलोबीज केक्स को आज मुझे नहीं लगता शायद मिसेस दीवा में कोई भी ऐसा होगा जो शायद पूजा जुनेजा और वॉलोबीज केक्स को नहीं जानता होगा. A lot of people think and they say that you know Mrs. Diva has people from all across the globe. हम बहुत सिटीज से लोग हैं एंड वी यहाँ पे हम मार्केटिंग करके क्या करेंगे. यू नो हमारा बिजनेस जो है सिर्फ पुणे में है या सिर्फ मुंबई में है या सिर्फ कोलकाता में है, या वी आर बेस्ड आउट ऑफ वन ऑफ द सिटीज. तो हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज करके क्या फायदा. सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पूजा जुनेजा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वॉलोबीज केक्स. फायदा ये है, बेनिफिट ये है, जो लोग बाहर हैं, इधर उधर हैं, उनके रिलेटिव्स तो दिल्ली में है ना, उनके रिलेटिव्स तो वहां हैं जहां वॉलोबीज केक्स डिलीवर कर रहा है. पूजा हैज गॉटन ऑर्डर्स फ्रॉम पीपल हु आर नॉट लिविंग इन दिल्ली. मेरी ही फ्रेंड ने ऑर्डर किया है, शी इज सिटिंग इन स्वीडन एंड शी हैज ऑर्डर्ड फॉर हर मॉम इन दिल्ली. गाइस, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है पावर ऑफ सोशल मीडिया का. वाई, हाउ इज इट सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट सोशल मीडिया कनेक्ट्स एवरीबॉडी. कहीं पे भी हो आप, ऐसा तो नहीं है ना कि यू आर द ओनली पर्सन लिविंग इन दैट सिटी. दैट सिटी कंप्राइजेस ऑफ लैक्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल. आसपास तो लोग हैं ऑफ कोर्स जिनका ऑनलाइन काम चल रहा है 100%, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है. बट जिनका नहीं भी है
उनको भी ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया आज के टाइम में सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. थर्ड पॉइंट, niche identification, target audience identification. It is another point that I always keep on saying that it is extremely important, guys. बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो, टू अंडरस्टैंड द टारगेट ऑडियंस. किसके लिए काम कर रहे हो, किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, एंड लाइक आई ऑलवेज से that this is probably the most important thing for all of us to do. and इस साल में ये चीज समझ लो कि ये पॉइंट ऐसा है जिसपे हमें सबको ध्यान देना ही देना है. I'm going to come to the another point why it is very important, and I'm planning another live session specially on niche identification and target audience identification, कि अपना जो target audience है उसकी profiling कैसे करनी है. So we'll do a separate live session on this कि target audience की profiling कैसे करनी है, because I'm sure आप लोग ये question जरूर पूछोगे कि आप हमेशा यही बोलते हो कि टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफाइलिंग करो, बट हाउ डू वी डू इट, राइट? सो दैट इज समथिंग दैट okay, so let me see some comments I just read. I'm reading Amos's comment. How does women keep data safe and do online business with privacy settings? So Amos, I don't know what kind of data you are talking about and what kind of privacy settings you're talking about. There you have to specify it a little bit more. Isha is saying that I'm only on Facebook and I don't have time even on Instagram. Even for Instagram, Facebook has absorbed my client list. Presence makes it strong. 100% Isha. So it's not zaruri nahi hai that you have to be there on all the social media platforms. In fact, it is मेरे लिए possible नहीं होता कि मैं सारे social media platforms पे, whereas जबकि मैं I use a lot of tools, मैं बहुत सारे tools use करने की कोशिश करती हूँ, IFTTT buffer, फिर भी it is not possible for me. And you know, it's very sometimes I feel that it is very overrated that you have to be on all the social media platforms. जितना possible हो, जितना कर सको उतना करो. Facebook in itself is it's a huge platform. Facebook का शायद आई फील 1 से 2% भी अगर हम टैप कर लेना बहुत हो जाएगा क्लाइंटल हमारे लिए. सो इट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स ओके इफ यू आर एबल टू गिव टाइम on Facebook, if you're able to give time to people on Facebook, even that's enough. But yes, उसको थोड़ा सा प्लान करके करना स्टार्ट कर लो कि Facebook पे अगर टारगेटिंग करनी है तो वो कैसे करनी है. That's it. Okay. Now fourth point, very important point again, guys, be adaptable. So this year you have to understand, I think 2020 has taught all of us that we cannot be rigid in our ways. ये शायद बहुत बड़ा lesson है जो कि हमने सीखा है 2020 से, that we cannot be rigid in our process, we cannot be rigid in our approach. Be open to new ideas, guys. Be open to experimenting. You have to plan, you have to execute, you have to learn, and you have to adapt. ये ऐसे चलता है ये chain. Plan, execute, learn, and then adapt. And this is one of the biggest things that we have to understand in this year, be it in terms of going online जाने business के उसमें सीखना पड़ेगा, या कैसे भी आपको adaptability का जो issue है वो सबसे बड़ा issue है और ये चीज सीखनी ही पड़ेगी. And I am giving you the example. I am sure आप लोग सब इस चीज को मानोगे. सबसे बड़ा हिट किसने लिया पैंडेमिक की वजह से? टूरिज्म इंडस्ट्री ने. टूरिज्म इंडस्ट्री में कौन है इस ग्रुप में? कौन आप लोग बर्डी से बर्डी ही ऐसा है जो कि टूरिज्म इंडस्ट्री? प्रियंका मिगलानी. नॉट इवन वंस हैज दिस गर्ल कंप्लेन टू मी. एक बार इसने मुझे कंप्लेन नहीं किया कि टूरिज्म जो है वो आस्था इतना हिट हुआ, मैं क्या करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं. वेरी स्मूथली शी हैज अडेप्टेड. शी हैज वंडरफुली डाइवर्सिफाइड. इसने शी हैजंट इवन ऐसा भी नहीं किया, नोटेड डाउन हाउ ब्यूटिफुली शी स्टिल कनेक्टेड विद दोज पीपल. जहाँ जो सिटीज इसकी स्ट्रेंथ थी, प्रियंका की स्ट्रेंथ थी, जहाँ पे ये टूरिज्म में इसका फोर्टे था, वहीं से शी हैज स्टार्टेड सोर्सिंग प्रोडक्ट्स.
how beautifully she has diversified and she has not even lost contacts with those people. So we have to understand we call this adaptability, and how quickly she has adapted. ऐसा नहीं है कि I understand, of course, इसका मतलब ये नहीं है that she hasn't faced challenges. बहुत challenges face किए हैं इसने भी, and initial few months थे वो बहुत confusion वाले months थे, and बहुत ऐसी problems थी जो कि शायद किसी ने भी anticipate नहीं की थी, और जब tourism open हुआ उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बट शी हैज ओवरकम देम. कंप्लेन वाली जो चीज है ना वो नहीं है इसमें. सो व्हाट शी डिड वाज अपने आप सोल्यूशन निकाला ना उस चीज का. ऑफ कोर्स डिस्कशंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग, आइडियाज चलते रहते हैं, बट देन व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज अडेप्टेबिलिटी. शी इज अडेप्टेबल, अडेप्ट कर लिया इजीली. सो दैट्स व्हाट आई एम कमिंग एट. फिफ्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट and your जो ये हमारा this thing customer service. So your customer service has to stand out, guys. Communication and customer service, it has to be impeccable. Sorry. I'm so sorry. Yeah, so I was saying that your communication with your client and your customer service really has to stand out. It has to be impeccable. Keep improvising, connect with them. It is extremely important to connect with your clients, guys. It is extremely important. I'm fine, guys, I'm fine, thank you so much. Right, and I think one of the examples that I would like to take over here is probably Shruti Bansal from Boutique the shop. And she has, deal with her once. When you deal with her once, you will she will leave no stone unturned. She will leave no stone unturned to provide you the best of the service, and the branding that she has come up with, she has really upped her game. So in the coming year, the customer service, the way you treat your customer, the way you communicate with your customer. No, I'm fine. I'm fine. Thank you so much, guys. I'm fine. Sushila, yes, I am Indian. Don't I look like an Indian? This is a very strange question, Sushila. I've gotten for the first time. I'm definitely an Indian. My name is Astha Jain, by the way. Okay, so the customer service is the next point that we really have to take care about. Next, sixth point, building relationships and providing value. अभी क्या है, next year में we have to provide value, guys, and focus on this. This is very important point for everyone, but especially for the ones who are providing services. जब products client के हाथ में आते हैं ना, they still feel, अभी भी हमारे यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे एक मिसकंसेप्शन सा है, थोड़ा सा है ये चीज कस्टमर्स को कि प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हो तो हाँ ठीक है, दे सी दी वर्थ, बट सर्विस आप सेल करते हो ना तो कई बारी दे आर अनेबल टू सी दी वर्थ. वो उनको लगता है कि नहीं डिस्काउंट और दे दीजिए, आप कुछ आपकी तो सर्विस ही तो आप सेल करो. दे आस्क मी ऑल्सो, मेरे से भी बहुत बार ऐसे सवाल करते हैं लोग कि सर्विस ही तो है मैम, इसके क्या चार्जेस हैं, आप तो कोई प्रोडक्ट थोड़े ना दे रहे हो. सो ये अभी भी ये बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि माइंडसेट है लोगों का अभी भी ऐसा. बट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, इट गोज अ लॉन्ग वे गाइज. बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम में ये चीज करना.
बट यू नो, और स्पेशली अब जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हम लोग कंपटीशन की ही बात करते हैं, जब चैलेंजेस की, हम बिजनेस चैलेंजेस की बात करते हैं, वी रियली टॉक अबाउट हाउ competition is increasing day by day, and how people are like taking over and everything. And what is going to set us apart is building relationships with people, with our clients and with our customers, and how much value we are providing to them, and not just being a salesy guy, a salesy person. I would really like to take the example of Vinisha, Sakshi, you know, इन लोगों से बात करके देखो, ईशा, they will not, you will immediately understand कि ये जो मतलब एक you know relationship building होती है, ये जो एक value provide करने वाली बात होती है ना, ये it is going to take you places. They will focus on what is good for you. They will not focus on the revenue they are generating, and that is, I think, what everyone wants. You know, they don't want you to treat them like a client, right? आप अगर क्लाइंट की तरह आपको एक रेवेन्यू जनरेशन सोर्स की तरह कोई आपको ट्रीट करे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, राइट? सो इट इज जस्ट दैट एवरीबडी वांट्स टू बी ट्रीटेड लाइक अ ह्यूमन. आप एक इंसान की तरह अगर आपको कोई ट्रीट कर रहा है, दैट इज समथिंग जो कि हम सब यही चाह रहे हैं. So please keep this thing in mind. Of course, yes, Rakhi, Malti, you know, ये सभी I guess मेरे सारे जितने भी ये मेरे experts हैं, इन सबसे हमें शायद यही lesson मिलता है. And I feel that this is the most important rather lesson that we have to understand and learn in the coming year. Now, my seventh point is research, guys. Be very strong with your research work. Don't just start clueless. एकदम clueless start नहीं करना है. Do not base everything on your market research, because जो हम market research करते हैं वो जो हम खुद करते हैं वो इट्स नॉट फूल प्रूफ. वो फूल प्रूफ नहीं होता है. इट हैज़ अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं. बट डू अ बेसिक मार्केट रिसर्च, फीडबैक लो कस्टमर्स का, उनको सेंड आउट कस्टमर यू नो स्मॉल फॉर्म सर्वे क्वेश्चंस भेजो, उनको आस्क फॉर सजेशंस. एंड यू डू नॉट नीड एनी फैंसी सॉफ्टवेयर, गाइज. अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल थिंक शायद सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, मेल चिप ये लो, ईमेल से ये करना पड़ेगा, वो कर. नो, नथिंग. कुछ नहीं चाहिए. ऑल यू नीड इज जस्ट फेसबुक. आपको फेसबुक के थ्रू सेंड करो, व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करो, या आप इंस्टाग्राम के थ्रू पोल्स कर लो. यू नो, it's just शिखा, yes. So it's just a personalization हो जाता है. शिखा, handwritten note is just a small personalization from you to the client. तो अच्छा लगता है देखने में. So be very strong with your research. एक basic research करना is very very important. Plus प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, लोगों का ओपिनियन जरूर ले लो एक बार. आई एम नॉट सेइंग बेस योर कंप्लीट प्रोडक्ट और कंप्लीट आइडिया और सर्विस ऑन द फीडबैक दैट यू गेट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, बट एटलीस्ट यू विल गेट अ मार्केट सेंटिमेंट. सो वो एक सेंटिमेंट जो है वो आपको पता चल जाएगा, एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 8 पॉइंट, यूजर रिव्यूज. गाइस, यूजर रिव्यूज, आई थिंक किसी ने पूछा भी था ये क्वेश्चन, एंड आई एम प्लानिंग टू टेक दिस live session also, that how can we use more and more user reviews to generate business for us. But then start using more user reviews, and the best, guys, this is the best way of the marketing, when people start talking about you. So this is like you know when your customers advocate about your business, your brand becomes more trustworthy. You have arrived when people start advocating your business. So wo hi Sadhna, thank you for joining in. So this is why I'm saying that user reviews are very very important, and in the coming year focus on them. चाहे आप WhatsApp पे लो, Facebook पे लो, Google reviews पे लो, आपने अगर Google listing बना रखी है उस पे, तो आप उस पे encourage people to leave reviews for you there, जहाँ पे भी आप ले रहे हो. But then please ask your clients to share reviews for you. ओके अब ये रिव्यूज के बारे में बात करें और नीवा की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता. सो नीवा जो है बहुत अच्छे से यूज करती है, एंड शी इज अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल फॉर दिस. यस, एग्जैक्टली दीपा, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो है, विच इज इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिसिटी. बेसिक मार्केटिंग रूल हर जगह में, जो वो MBA में मार्केटिंग में सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग.
So Neva is using it in a great manner, and I would really want to commend her over here. She beautifully presents it also. So go through her page देखो उनका एक बार and see. Yes, सृष्टि के भी रिव्यूज मैंने देखे हैं. She also presents it wonderfully. बहुत अच्छे से सृष्टि भी प्रेजेंट करती हैं. So see it. And another example is निधि का भी एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगी. निधि दीवान, हमारे दादी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स. सो मसाले जो हैं वो मसाला क्वीन, हमारी मिसेस दीवा की मसाला क्वीन जो है. और अब जो हमारी इमर्जिंग जो क्वीन है वो है खस्ता नमकीन, शिखा गुप्ता. इमर्जिंग हमारी खस्ता नमकीन. तो डिफरेंस क्या है, मैं आपको डिफरेंस समझाती हूँ. दोनों ही निधि और शिखा जो है रजिस्टर्ड मेंबर्स नहीं है, बट दे आर जनरेटिंग बिजनेस फ्रॉम द ग्रुप. कैसे? बिकॉज दे हैव स्पेंड टाइम इन द ग्रुप, दे हैव स्पेंड टाइम इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स इन द ग्रुप. ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में हुआ, या ये 2 दिन में हुआ, या 1 महीने में हुआ, या 2 महीने में हुआ. ये इसलिए हुआ बिकॉज दीज पीपल हैव स्पेंड टाइम इन द ग्रुप. दीज पीपल हैव स्पेंड टाइम बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद द पीपल हु आर प्रेजेंट इन द ग्रुप. इन्होंने ना ऐसा नहीं एक दिन उठ के ऐसा नहीं कहा कि अच्छा ठीक है आज मैं देखती हूँ, आज मेरे को शायद एक ऑर्डर मिल जाए या कल मेरे को ऑर्डर मिल जाए. दे हैव वर्कड फॉर इट वेरी हार्ड. स्पेशली मैं शिखा के बारे में अगर मैं बात करूँ तो शिखा हैज बीन सपोर्टिंग ईच एंड एवरीबडी, हर किसी को. सुरभि की तरह जैसे राखी कर रही हैं, ऐसे शिखा की भी मैं आई थिंक वी शुड ऑल थैंक शिखा. हम सबको शायद ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि दे आर स्पेंडिंग टाइम लगा रहे हैं, रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सबको आगे लेके चल रहे हैं. So Priyanka is saying ये मैरिड क्वीन क्या होता है? I don't know. I said masala queen. Priyanka, I said masala queen. No. I said masala queen and then I said emerging khasta namkeen queen. So Shikha is emerging khasta namkeen queen and Nidhi is Mrs. Diva's masala queen. Okay, right. So yes, so I was saying that both Shikha and Nidhi they have earned this thing from the group by spending time in the group. They have okay, so Surbhi had done some type. Okay, ठीक है, मैंने ठीक बोला था. Okay. Then the 9th point is, guys, to stay focused. Stick to your core strength instead of learning 5-10 different things. I'm seeing a lot of people hi Suruchi, thank you for joining in. So a lot of people, what they're doing is they're learning skills and they're learning things that are nowhere near to what they are doing. Right, so which is not a very good investment of your time. So again here I would like to take example of Neva का आप example अगर देखो, she's releasing a lot of new services, बहुत नई services introduce कर रही हैं Neva. But then everything is related to the core service जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, फ्रेंच एंड थिएटर से ही हम नीवा को जानते हैं शुरू से. तो लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस कर रही हैं, सर्विसेज लेके आ रही हैं, बट शी इज स्टिकिंग टू हर गन्स. अपना जो कोर स्ट्रेंथ है उससे ही रिलेटेड. ऐसा नहीं है कि उसके साथ वो 10 और 12 और चीजें जोड़ती जा रही हैं. गाइज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट पीपल देन स्टार्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस इन योर सर्विसेज. हम क्या है, स्मॉल बिजनेसेस हैं, वी आर नॉट बिग कॉन्ग्लोमरेट्स. तो जो ये बड़े एम्पायर्स होते हैं, दे हैव एक्सपर्ट्स फॉर एवरीथिंग एंड फॉर अस वी आर अगेन वन वुमेन आर्मी. एक इंसान कितनी चीजें कर सकता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. और जो क्लाइंट्स हमारे सर्विसेज ले रहे हैं, वी हैव टू बिल्ड अप ट्रस्ट कैसे बिल्डअप होगा? ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए दे हैव टू टेक अप आवर सर्विसेज जब वो ले रहे हैं तो उतना अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलना चाहिए. हाय रिचा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. So please understand that whenever you are investing time in learning something new, that has to be relevant to your work, guys. Time is currency. Time is very important. Free webinar है, paid webinar है. Don't just go about signing up for everything. जरूरी नहीं है हर चीज sign up करनी ही करनी है. So see whether it is important for you or not. जरूरी भी तो हो ना वो, तभी तो आपको वो फायदा देगा. अदरवाइज फायदा किसे देगा ना? आप बिजनेस तो कुछ और कर रहे हो, लर्न आप कुछ और कर रहे हो, वेबिनार्स किसी और चीज के अटेंड कर रहे हो. अवॉइड डूइंग दैट गाइज. टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको भी पता है आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी चीज टाइम ही है. सो डोंट स्क्वांडर इट. ओके, next point is share your story, share your brand story. Guys,
A lot of you hold yourself from sharing about your stories, sharing about your brand story, or you wait for others to ask. Share guys, share about yourself, share about your process, share what you are doing. अपने बारे में बताओ, ट्रस्ट बिल्डअप होता है गाइस. शेयर अबाउट योर प्रोसेस, ये बताओ कैसे काम कर रहे हो. सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ट्रस्ट बिल्डिंग में. इट इज वेरी सिंपल गाइस. छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी. जितना मेरे बारे में ज्यादा जानते होगे उतना मेरे ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा आपका. किसी के भी ले लो, फ्रेंडशिप में ट्रस्ट कैसे बनता है. ज्यादा जानते होगे दूसरे के बारे में उतना ही ज्यादा उस पर ट्रस्ट बढ़ेगा. बेस्ट फ्रेंड कैसे बनाते हो, जब सबसे ज्यादा पता होता है किसी के बारे में वही बेस्ट फ्रेंड बनता जाता है. ऐसे ही क्लाइंट्स भी ट्रस्ट कैसे करेंगे आपके ऊपर, जब ज्यादा जानेंगे आपके बारे में. शेयर करो ना, अपने ब्रांड के बारे में शेयर करो, अपने प्रोसेस के बारे में शेयर करो, काम के बारे में शेयर करो. कैसे स्टार्ट किया, क्यों वेट करनी है किसी की, क्यों वेट करना है. आई सी अ लॉट ऑफ पीपल पेइंग thousands and thousands of rupees to get interviewed. लाइव, गो लाइव गाइस. फेसबुक ने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको दिया है, इतना बड़ा फैसिलिटी है यार किसी के भी पास. गो लाइव ना, गो लाइव, टॉक अबाउट योर सेल्फ. मत जाओ, कोई बात नहीं, इट्स ओके. 1 घंटा नहीं लाइव कर सकते, नहीं बात कर सकते, मत करो. 15 मिनट तो जा सकते हो, 15 मिनट्स मेरे से भी तो बातें करते हो, आपस में एक दूसरे से बातें करते हो. लाइव आके कर लो, ज्यादा लोग मिल जाएंगे, ज्यादा ऑडियंस मिल जाएगी, राइट. सो इट्स ओके, गो लाइव गाइस, गो लाइव. शेयर अबाउट योर सेल्फ. कुछ भी आप शेयर करना चाहते हो. Yes, Isha, we would definitely want to know about your brand story. Definitely. सभी के I would say सभी के brands, आपके सबके brands जो हैं वो बहुत precious हैं हमारे लिए. हम सभी के लिए बहुत precious हैं. I think all of you should go live, talk about your stories. अपने बारे में बात करो. Challenges क्या face किए आप लोगों ने उसके बारे में बात करो. You know, Deepa, so you have an idea to go what to go do a live about next time. So just do it. Okay. My probably second last point for today is acknowledging your clients. Acknowledging the clients is very important guys, and not probably, clients are the most important people for us, for everybody. They are paying for us, for our services, and it's something that in our process, in the hustle and bustle, we just forget about them, right? We forget about them. And think about it guys, it's important to acknowledge our clients. It's important to say thank you to them. And there is one person who I think is doing it beautifully. Harbina, House of Mist, is doing it beautifully. She's coming up with a lot of बहुत से वो live sessions लेके आती हैं, बहुत से live lucky draws वो करती हैं. And I somehow feel that it is a great way to acknowledge and it is a great way to say thank you to people, to the clients, right? So try to say thank you and say just acknowledge your clients. And I think somewhere or the other in the end you could get some references also. बहुत अच्छा लगता है जब कोई रेफरेंस आपको देता है. I'll give you the example. It is yesterday कल शाम की बात है. साक्षी messaged me that my मासी wants to become a registered member. And मैंने नहीं बोला, मेरी बात भी शायद साक्षी की मासी से first time हुई थी. I'm yet to introduce her in the group. And साक्षी advocated for Mrs. Diva. साक्षी ने ही उनको कहा. मेरे को उनको एक बार भी नहीं कहना पड़ा कि आप if you want you can take the membership. I usually at times whenever there is a new member मैं कहती हूँ उनको कि if you want you can go for the membership. But I did not say anything yesterday. So it was just all Sakshi yesterday. So Sakshi did it for me. Thank you so much, Sakshi. Thank you, really thank you so much. Sakshi is one person who has been taking care of me, who has been responsible for me for very long now. आई थिंक लाइव से पहले भी हम शायद साक्षी हम बात कर रहे थे. मैंने मैसेज डाला हुआ था व्हाट्सएप पे दैट आई एम वेरी बिजी टुडे, इफ इट्स अर्जेंट राइट अर्जेंट, एंड देन ड्रॉप मी अ मैसेज. शी ड्रॉप मी अ मैसेज, शी रोट अर्जेंट एंड सेड दैट ब्रो टेक रेस्ट. थैंक यू सो मच. Alright, so now just 2-3 important points guys. एक तो alternate source of income के बारे में हम लोग इस साल में थोड़ा सा बात करेंगे. It is very important guys.
टू अंडरस्टैंड जो भी काम हम लोग कर रहे हैं उसके साथ साथ में इफ देयर इज एनीथिंग दैट वी कैन जनरेट इनकम फ्रॉम, सो बेसिकली alternate source of income from whatever we are doing if it is possible. कुछ cases में possible होता है, let's think about that if it is possible. Health नहीं किसी को ignore करना है इस साल में. 2021 should be the year of health for everybody, and Sakshi, this is for you also because you are the one who initially motivated me. Okay, and then the last thing is, guys, reach out if you guys need any kind of help, if you guys need any kind of collabs के लिए बात करनी है, reach out to me, reach out to anybody. किसी से भी आप करना चाहते हो, start talking, suggestion चाहिए, brainstorming sessions, if you guys want गाइस, एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाह रही थी और बहुत टाइम से मैं करना चाह रही थी. बी वॉचफुल ऑफ योर कॉन्वर्सेशंस गाइस, बी वेरी वॉचफुल ऑफ द कॉन्वर्सेशंस दैट यू गाइस हैव विद ईच अदर. ये जो कॉन्वर्सेशंस है ना, आई अंडरस्टैंड बहुत बार हमें लगता है कि वेंटिंग आउट के लिए कोई चाहिए होता है. वी वेंट आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत चैलेंजेस हम लोग लाइफ में फेस कर रहे होते हैं, दैट्स ओके ऑल्सो. बट देन कॉन्वर्सेशंस जो है मीनिंगफुल भी चाहिए हमें, उनका कुछ ना कुछ रिजल्ट भी चाहिए होता है. सो वेन एवर यूर टॉकिंग टू ईच अदर, कभी जब बात करनी है एक दूसरे से, कभी बात करते हो तो बी वॉचफुल कि क्या हम कॉन्वर्सेशन एक दूसरे से कर रहे हैं. कभी ऐसा भी होना चाहिए कि काम की भी बात कर रहे हो, आइडिया जनरेशन की भी बात कर रहे हो, चैलेंजेस भी सॉल्व हो रहे हो एक दूसरे के. वेंटिंग आउट करो, डेफिनेटली करो, कोई दिक्कत नहीं है. मेरे साथ करना है, मेरे साथ भी करो, एक दूसरे के साथ करना है, एक दूसरे के साथ करो. लेकिन जो ये मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस हैं ये भी ज़रूरी हैं. और ये बी वॉचफुल ऑफ योर कॉन्वर्सेशंस, थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखो. एंड इट विल कम विद टाइम. आई अंडरस्टैंड एकदम से नहीं आएगा. स्पेशली गर्ल्स, हम लोग बहुत फेमस होती हैं कि सिर्फ एक दूसरे के बारे में बिचिंग करते रहते हैं हम. सो उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे. बट कॉन्वर्सेशंस जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखो कि किस बारे में, किस डायरेक्शन में जा रहा है. एंड कभी काम की भी बातें ज़रूरी होती हैं. और काम से ऐसा नहीं कि हमेशा ये रेवेन्यू जनरेशन और ये सब की ही बात करनी हो. वो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ कि बिजनेस काम. हमेशा वर्कहॉलिक भी नहीं बनना है, बट थोड़ा सा डायरेक्शन ज़रूर देखनी है हमें. ओके, सो दीज वर माई पॉइंट्स गाइज. और अभी 5 बजे डॉक्टर सौम्या कोटे 5 o'clock शी इज गोइंग टू टॉक अबाउट हेल्थ, अपना फैट टू फिट बेली, जो कि जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. ओके, सो गाइज वी आर गोइंग टू शी इज गोइंग टू कम लाइव इन द ग्रुप में है उनका लाइव. लेट्स टेक अ शॉर्ट 10-minute ब्रेक. इट्स अभी स्टिल हैव 10 minutes आई थिंक. अभी है हमारे पास 10 मिनट, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देन विल मीट इन द ग्रुप. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी गाइज. फॉर आई नो दिस वॉज अ लॉन्ग सेशन and this was very important session actually. These are the stencil points. अभी आप लोगों ने देख लिया. Rewatch this video, note down these points and then decide your goals. Come up with your goals for the next year according to this, and then we can do an individual जो हमारे brainstorming sessions हैं सबके, हम वो कर सकते हैं. Thank you so much. Hi दीदी, I did not know आप देख रहे हो. How are you doing? बहुत टाइम से बात नहीं हुआ. I'll drop you a message. Shikha, you want a dance session by me? Okay. All right. Thank you. Okay. Thank you so much, everybody. Thank you guys. Thank you. Bye.